So today I want to get into the word now. तो आज वचन में जाएंगे इस वक्त। It's a really prophetic word. तो सचमुच ये एक भविष्यवक्ताई वचन I है। believe this is a word for us, not only for you, it's for me. और यकीन मानते हैं कि ये हमारे लिए वचन है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं। And हमारे लिए। please listen very, very carefully. Make notes if you can. अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। And if you're Apostle Paul's lost cousin, don't make notes. Yeah, go to Zechariah 12 and verse 10. चलिए जाते हैं इस समय जकरिया का 12वां अध्याय का 10वां वचन। Zechariah chapter 12 and verse 10. Yes. जकरिया का 12वां अध्याय Very का 10वां powerful, वचन you know. बहुत ही सामर्थ्यशाली। You know, I was talking in the morning that the book of Zechariah सुबह बता रहे थे कि जकरिया की is पुस्तक so filled with prophecy. भविष्यवाणियों से बहुत ही भरी हुई है। Believe me, I'm telling you. यकीन माने आपसे कह रहे हैं। It's like such a compact book, but it's so filled with prophetic. और देखिए ये एक ऐसी पुस्तक है जिस पूरी तरह से भविष्यवाणियों से भरी हुई है। Look what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. देखिए वचन में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। Yes, प्रार्थना सिखाने वाली. Wow, I love that. Amen. We're going to look at that. Then what will happen? They will look on me whom they pierced. फिर आगे वचन में लिखा है तब वे मुझे देखेंगे अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है Yes, they will mourn for him. और हाँ उसके लिए रोएंगे। As one mourns for his only son and grieves for him as one grieves for a firstborn. और जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। Is anybody listening over here? क्योंकि सुन रहे हैं यहाँ पर। Notice the first thing over there, it says, गौर करें वचन and में। I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem. देखिए वचन में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर उंडेलूंगा। Notice God is saying, I will pour. देखिए गौर करें परमेश्वर कह रहा मैं उंडेलूंगा। It's not man that is doing something, it's God who is doing it. देखिए कोई इंसान यहाँ पर नहीं जो कर रहा है लेकिन परमेश्वर खुद कर रहा है। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं। You see, revival begins in the heart of God. और देखिए बेदारी जो है ना शुरू होती है परमेश्वर के हृदय से। We have to respond to the cries of the Holy Spirit. और देखिए हमें पवित्र आत्मा की जो पुकार है उसका उत्तर देना है। Because in these last days, क्योंकि इन अंतिम दिनों में there is going to be one last move of God that we are in today. और देखिए परमेश्वर की एक आखिरी ऐसी क्रांति होगी जिसमें आज हम हैं। How many of you are understanding what ये I'm तो समझ रहे saying? हैं इस वक्त। He says, I will pour. परमेश्वर कहता है मैं You उंडेलूंगा। don't have to do anything. Just respond to what the Holy Spirit is calling you. और देखिए आपको Or कुछ to कर the cries of the Spirit. देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको प्रत्युत्तर देना है पवित्र आत्मा की पुकार के You लिए। see, in today's world, देखिए आज की दुनिया में so much is happening. बहुत कुछ हो रहा है। Nations threatening nations. एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को धमका रहा है। And people are losing jobs. लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। You know, one man wrote to me, says, Pastor, I'm frustrated. देखिए एक व्यक्ति ने लिखा कि पासवान जी मैं हताश हो चुका हूँ। And in this situation, what should we do? और ऐसे हालातों में हम क्या करें? You must respond to what the Spirit of the Lord is saying. देखिए आपको उसका प्रत्युत्तर देना है जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। Because man's answers are over. क्योंकि इंसान की ओर से मिलने वाला उत्तर खत्म Man's हुआ। solutions are over. इंसानों से मिलने वाले समाधान खत्म हुए। How many of you are listening right now? और कितना सुन रहे हैं? And God says, try what you want to do. And when everything has failed, और परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम आजमाना चाहते हो आजमा कर देख लो और जब सब कुछ नाकाम हो जाता है man looks to God. तब इंसान परमेश्वर की ओर Women देखता look है। to God. Hallelujah. सुनिए Look at somebody and say, the Lord is my last bus stop. इसको देखकर के प्रभु ही मेरा आखिरी बस स्टॉप है। Hallelujah. If this does not work, nothing else will work. अगर देखिए ये काम नहीं कर रहा तो कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। Are you listening right now? सुन रहे हैं You इस see, वक्त? the people that come to the Lord, they are not fools. देखिए जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं ना वे बेवकूफ नहीं। आप बेवकूफ नहीं होते हो, सब कुछ आजमा के लेके आजमाते हैं। 4 घाट का पानी पी के बाद में प्रभु के पास आते हैं। कितने लोग 4 क्या लगा लो, आप कितने लगाना है? 40 घाट बोले तो कम है। सब कुछ आजमाते हैं वो लोग और बाद में यीशु के पास आते हैं। They are not fools. देखिए वे मूर्ख नहीं Many है। people say, oh, इनको ऐसे भ्रम में डाला है। नहीं सर, वो मूर्ख नहीं है, वो तुम्हारे बाप हैं। लेकिन प्रभु उनको छूता है और उनके जीवन बदलता जाता है। I want to tell you, church. अब So कहना चाहते हैं। the Bible says, I will pour on the house of David. और बाइबल ऐसे कहती है कि दाऊद के घराने पर मैं उंडेलूंगा। Look at somebody and say, the house of David. इसको देखकर कहे दाऊद का घराना। Strategies are useful. और देखिए नीतियां जो हैं ये देखिए काम करती हैं। Strategies are useful, but the outpouring is essential.
देखिए नीतियां जो है ये काम करती है, लेकिन उंडेला जाना ये बहुत ही जरूरी है। Today, what must I do, Pastor? और पासवान जी आज मुझे क्या करना You है? need to respond to the cries, to the inner conviction of the Holy Spirit. देखिए पवित्र आत्मा की जो पुकार है, पवित्र आत्मा जो आपको अंदर से जो इसके बारे में कायल करता है, उसके लिए प्रत्युत्तर देना है। He will tell you, God will never tell you to do something which you cannot do. देखिए परमेश्वर कभी आपसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते, Because He will supply the grace for you to do it first. क्योंकि वह देखिए पहले आपको अनुग्रह भी प्रदान करेगा ताकि आप कर सके। Sometimes कभी-कभी- it's not very big. और ये बहुत बड़ा काम नहीं Look at somebody and say, not very big. किसी को देखकर कहे, बहुत बड़ा काम Back in नहीं। the Old Testament, God told the Israelites, just march around. और देखिए पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि बस चक्कर काट के आओ। And hello, are you listening right now? God will always tell you to do what you can do. और देखिए परमेश्वर हमेशा आपसे वही कहेगा जो आप कर सकते हैं। And when you do what you can do, He will do what you cannot do. और जब Oh, आप come वह on, करते हैं sir. जो आप कर Hallelujah. सकते हैं, तब परमेश्वर वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। कल कोई लोग बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे खुदा जो बोल रहा है वो कर, और खुदा वो करेगा जो तू नहीं कर सकता है। तू अपने आप को कर्जे से बाहर नहीं निकाल सकता, तू अपने पति को खींच नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसको शैतान ने खींच लिया है। लेकिन जब तू उसके पीछे, यीशु के पीछे खींचा चला जाएगा, तेरे पति तेरे पीछे पीछे आएगा, तेरी पत्नी तेरे पीछे पीछे आएगी, तेरा घर बस जाएगा। Somebody say, I receive this word right चलिए now. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Somebody say hallelujah. हालेलुया। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? So important that you respond to the voice of the Holy Spirit. Some of us are stubborn like mules. और देखिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज का पालन करें। कुछ लोग जो होते हैं एकदम खच्चर के जैसे ना, एकदम बलवा Pastor, make it a little. गधे के जैसे। I love that. Kachar, it's like Hebrew for us. Kachar. He's being good to you actually. If many people say gada nahi samajhta na, probably when you go out you say, gada bola mujhe. No, it's all for us. ये सब हमारे लिए। We are so rebellious. देखिए हम बहुत ही बलवा करते हैं। So that we need a stick, we need a blow on the back, and only then we move. इस वजह से देखिए हमें डंडे Why या you, छड़ी even की me? जरूरत पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। Let's go to the second point. चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। And what will happen? Look at somebody. This is said, everyone, the spirit of grace. सभी लोग कहें Come अनुग्रह on, की come on, आत्मा। everybody say the spirit of grace. Two words shape the work of the Holy Spirit. और देखिए दो शब्द यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा के कार्य को आकार देते हैं। Everyone say the spirit of grace. सभी लोग कहें अनुग्रह की आत्मा। What is grace? Grace is undeserved favor that we don't deserve at all. और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो एक भलाई है जिसके हम बिल्कुल भी लायक नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। Is anybody following me right now? क्या कोई समझ रहे हैं? And the spirit of grace, when the Holy Spirit comes on you, और देखिए जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, you will receive grace. आप अनुग्रह पाएंगे। Come on, hallelujah. चले कहें हालेलुया। Doors which cannot open will start opening for you. और जो दरवाजे आपके लिए खुल नहीं सकते थे वे खुलने लग जाएंगे। Yes, sir. जी हाँ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग बड़े पढ़े लिखे हैं इसलिए दरवाजे खुल रहे हैं। अरे ऐसे पढ़े लिखे बाहर घूम रहे भाई, डिग्री के किलो में डिग्री लेके घूम रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं थोड़ा क्या हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार मेरी इंग्लिश की वजह से, मेरी थोड़ा पर्सनालिटी की वजह से। भाई साहब पर्सनालिटी वाले बैठे हैं ऐसे रास्ते पर, आप सुन रहे हो? जब ये स्पिरिट ऑफ ग्रेस, व्हेन द स्पिरिट ऑफ ग्रेस कम्स अपॉन यू, जब अनुग्रह की आत्मा आप पर आता है, things which did not happen for years, they start happening like this. और जो चीजें सालों से नहीं हुई वे चुटकी बजाते होने लग जाती Stop हैं। saying that I don't deserve it. और ऐसा कहना बंद करें कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। Because it's truly, you don't deserve it. I also don't deserve it. और देखिए सच है कि आप और मैं हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन पापा ने मुफ्त में दिया है. कि पापा ने बिल्कुल फ्री में मुफ्त में Come दे on, दिया है। hallelujah. कहें हालेलुया। सोचो ना बेटा खाने के टेबल पे, पापा मैं कमा के दूंगा आपको। अरे खा पहले तेरी तो। Are you listening right now? Yes. जब बच्चा बाप के टेबल पे बैठता है थोड़ी बोलता है पापा मैं आज खा रहा हूं लेकिन आपको कमा के दूंगा मैं। It's grace. पापा की बेड जब सोता है तो ऐसा थोड़ी बोलता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जरूर दूंगा। It's grace. ये अनुग्रह है। Look at somebody and say grace. तो कहें अनुग्रह है। What do you do with grace? आप अनुग्रह के साथ करते क्या? You just receive it. आप बस ग्रहण कर लेते हैं। Look at somebody and say I just receive it. कोई तो कहे मैं बस ग्रहण कर लेता हूँ। Yes. Now listen to me. Listen to me. सुनिए ध्यान से, Write सुनिए। it down. The second thing you do with grace. और दूसरी चीज जो आप करते हैं अनुग्रह के साथ, When you receive grace, जब आप अनुग्रह पाते हैं, please write this down. लिख लीजिएगा, You extend that grace. आप उस अनुग्रह को आगे Oh, बढ़ाते you हैं। missed that one, didn't you? Look at somebody and say, किसी को when you देखा क्या? receive that grace, जब आप उस अनुग्रह को पाते हैं, I extend that grace. फिर वो अनुग्रह आप दूसरों तक बढ़ाते हैं। Come on now. Come on. Come on. Come on. Many of us, हमें से बहुत सारे लोग we stop with grace because
we don't extend that grace. हम अनुग्रह के साथ ही रुक गए क्योंकि देखिए उस अनुग्रह को हमने दूसरों तक नहीं बढ़ाया। Listen, sir. Listen, sir. सुनिए जनाब, You see that person who was forgiven in the Bible. आप देखते बाइबल में वक्त व्यक्ति जिसको क्षमा किया गया The था king said, "Okay, done. तेरा माफ कर जा। और राजा ने उससे जा कहा तेरा चलो माफ। ठीक है, तेरा कर्जा माफ होता है, जाओ। छोड़े तेरा माफ कर जा। घूम क्या? बोले really? सच में? बोले इतने करोड़ों का कर्जा माफ किया? बोला किया, चल मैं राजा हूँ, चल निकल यहाँ से। He couldn't believe his ears. और देखिए अपने कानों से इस बात को सुनकर But when he यकीन नहीं goes कर out of Kurla, I mean, when he goes out of that palace, सकते। जब वो उस महल से बाहर जाता है, some of you missed it. It was so आप fast, चुप ना? गए। He meets somebody. He's in his phone. He sees something. और देखिए वो जाता है, फोन में वो देखता है किसी को। अरे ये नालायक ने मेरा ये काम नहीं किया इसने। इसको फोन करता हूँ, इसकी खबर लेता हूँ मैं। And then that fellow, when he comes out of the studio, I mean, comes out of the palace, जब वो स्टूडियो से बाहर यानी कि महल से बाहर आता है, he starts beating up that guy. उस व्यक्ति को पकड़कर उसे पीटने लगता है। Come on now. चलिए। He makes funny face, like that, you know. He doesn't say hello and all. Hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? You see, that's where the grace stops. और देखिए वहीं पर अनुग्रह रुक जाता है। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं? And then फिर that grace is withdrawn. और वो अनुग्रह पीछे हट जाता है। Hello. सामने से hey. You see, church, we didn't deserve it. देखिए हम इसके लायक नहीं थे। When we extend that grace, the word of God says, you receive grace upon grace. लेकिन जब उस अनुग्रह को आप दूसरों तक बढ़ाते हैं, तो Grace परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह पर upon अनुग्रह grace. पाते हैं। Somebody say grace upon grace. कोई तो कहे अनुग्रह पर अनुग्रह। Hallelujah. हालेलुया। The brothers of Joseph received grace. और Come on यूसुफ now. के भाइयों ने अनुग्रह को पाया, But Benjamin received grace upon grace. लेकिन बिन्यामीन ने जो अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया 5 times. Come on now. Hello. 5 गुना। I pray that you receive this in Jesus' name. और यकीन Yes. विश्वास करते हैं आप इसे ग्रहण करें। अरे उन्होंने तो उसको बेचने की कोशिश की रे बाबा। Come on now. उसके भाइयों ने उसको बेचा, लेकिन यूसुफ ने क्या किया? बोले मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई लोग, चल ग्रेस छोड़ दिया। They could not believe it. और वे विश्वास नहीं कर सके। But what happened to Benjamin? लेकिन बिन्यामीन के साथ क्या हुआ? Benjamin was so close to Joseph. और बिन्यामीन यूसुफ के बहुत ही करीब था, So he received 5 times of his brothers. तो अपने भाइयों की तुलना में 5 गुना उससे ज्यादा Can I पाया। tell you? बताते आपको, You are connected to the heavenly Joseph. आप स्वर्गीय यूसुफ से जुड़े हुए His हैं। name is Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह। Sir, if all your people have died, if all your people have messed up, the grace of God will be upon your life. अगर आपके सभी जो सगे संबंधी मर भी गए या फिर उन्होंने गड़बड़ी कर दी, परमेश्वर का अनुग्रह आप तक आएगा। So you see, if you don't extend that grace, तो आप देखते अगर आप उस अनुग्रह को नहीं बढ़ाते, you move out of it, that तो आप grace. उस अनुग्रह से हट जाएंगे। So you extend that grace by forgiveness. तो देखिए आप उस अनुग्रह को दूसरों तक बढ़ाते हैं क्षमा करने के Look at द्वारा। somebody and say, extend that grace by forgiveness. किसी को देखकर कहें उस अनुग्रह को बढ़ाते हैं क्षमा करके। This is, come on now, hello, are you चलिए। there? Some people remember what happened in 1940. तूने किया था मालूम है? तू पेड़ के नीचे खड़ा, तूने ऐसा बोला, अरे भाई अगर तेरी फाइल प्रभु खोलेगा ना, हेलो, पब्लिक वॉर मूवी छोड़ देगी। I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। People want to know about this one and that one. और लोग जो है इसके उसके बारे में जानना चाहते हैं। How do you extend that grace? कैसे आप उस अनुग्रह को आगे बढ़ाते हैं? By giving. देने के जरिए। Not only money, सिर्फ पैसा ही नहीं, your service, आपकी सेवा, your very life. आपकी जिंदगी। Look at somebody and say, extend that grace. किसी को देखकर कहें और उस अनुग्रह को कोई आगे लोग बढ़ाएं। छोटा सा कुछ होता है ना, वो लेके बैठ जाते हैं और वे भूल जाता है कि प्रभु ने उन पर कितना अनुग्रह किया। Come on, praise the Lord. चलिए कहे प्रभु स्तुति। The spirit of grace, he says, I will pour upon you the spirit of grace. और देखिए अनुग्रह का आत्मा, परमेश्वर कहता कि मैं उन पर अनुग्रह के आत्मा को उंडेलूंगा। Come on, praise the Lord. And here's the second thing that happens when the Holy Spirit comes upon you. और ये चीज जो दूसरी चीज जो होती है जब पवित्र आत्मा आप पर The आता है, spirit of supplication. और ये देखिए विनती प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। You know, many people stop with the spirit of grace. और देखिए बहुत सारे जो अनुग्रह के आत्मा के साथ ही ठहर जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। क्या हुआ भाई? बोलो मेरे मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा, वाह 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 वाह, नौकरी मिल गई। अभी वो गवाही देता है और भाग जाता है। हालेलुया। बोले क्या हुआ तुझे, इतना चिल्ला रहा है तू? बोले मेरी छोकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, टोकरी मिल गई, गाड़ी मिल गई, साड़ी मिल गई। अरे वो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ताली बजा दी, भाग जाता है। फिर बाद में कभी दिखाई नहीं देता है। कितने लोग सुन रहे हैं? Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? But now what happens when the Holy Spirit comes on you? लेकिन क्या होता है जब सचमुच पवित्र आत्मा आप पर आता Not है? only the spirit of grace, सिर्फ अनुग्रह का आत्मा ही नहीं, but the spirit of supplication. ये निवेदन प्रार्थना निवेदन की आत्मा Come भी on, आता come on, come on, come on. Hallelujah. The spirit of supplication. है। किसकी प्रार्थना आदत? सिखाने वाली। प्रार्थना सिखाने वाली। जब सच्चा पवित्र आत्मा किसी पर उतरता है ना सर,
दो चीजें होती है उसके जीवन में, जो सब चीज उसने खोया है वो निकल जाता है, सीधे होने लगता है, और दूसरी चीज वो प्रार्थना में आता है, प्रार्थना करने लगता है। स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए करता है, नेशंस के लिए करता है, अपने भाइयों के लिए करता है। somebody say hallelujah। कोई तो कहे हालेलुया। yes, that is the true anointing। और यही तो सच्चा अभिषेक है। But today we see, we just see, oh, praise the Lord, God gave me a good job, hallelujah, I'm going to America, you sit all of you over here, I'm going to meet Trump. Be careful। Hello, are you listening, आप church? सुन रहे हैं इस वक्त? That's not true। इसमें कुछ सच Today नहीं। it's like we are using the Holy Spirit, आज देखिए हम पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं, and some of us receive miracles based on that only। और कुछ लोग उसी पर आधारित आश्रम भी पा लेते हैं। Pastor, can you pray for me? Bah! Okay, go। पास्टर जी, क्या आप मेरे प्रार्थना Oh, करें? hallelujah, my visa came। Good। Now, when will you come now? अब आपका वीजा आ गया, चलो ठीक है, That's आप just कब the आए? anointing। But when there is a pouring, everyone say, when there's a pouring, लेकिन जब उंडेला जाना होता है ना, you see, there will be miracles आप पाएंगे आश्चर्य होंगे and there will be prayer। और प्रार्थनाएं भी होंगी। Somebody say, क्या लिखा है? Spirit of supplication, क्या लिखा है? प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, he will lead you to prayer। वो आपको प्रार्थना में अगुवाई करेगा। Hallelujah। हालेलुया। Are you a man, a woman of prayer? क्या आप प्रार्थना करने वाले स्त्री और पुरुष हैं? If you're not, you are like a ATM machine। You want only God to be used as a ATM machine। मेरा काम, मेरा पेट भरे, मेरा ये भरे, मेरे वो भरे। अरे कितना भरेगा रे तू? फट जाएगा। प्रभु नहीं कहता है कि प्रभु भिखारी नहीं है, वो तुझे देगा। तू एक हाथ से देता, प्रभु तेरे झोली में भर देगा। लेकिन बेटा तू वापस प्रार्थना में आ। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस You वक्त? see, church, आप देखते कलीसिया, Bartimaeus, when he was healed, बरतिमाई जब उसे चंगाई मिल गई, when the Lord touched his eyes, जब प्रभु ने उसकी आंखों को he छुआ, followed Jesus, the Bible बाइबल says। कहती है कि वो यीशु के पीछे हो लिया। Oh, come on, somebody। चलिए कोई तो, He followed Jesus। वो यीशु के पीछे हो People लिया। were saying, hallelujah, hey! उसके पीछे भी बारतिमेउस आ रहा था। अंधा भिखारी था वो। But he had enough sense because उस पर प्रार्थना करने की आत्मा है। लेकिन इतनी समझदारी उसमें थी कि क्योंकि उसके ऊपर प्रार्थना सिखाने वाली Maybe आत्मा। in that 120 on the day of Pentecost, Bartimaeus must have been over there। हो सकता है कि पेंटिकोस्ट के जो 120 लोग जो इकट्ठा हुए थे ऊपरी कमरे में, उसमें बरतिमाई भी रहा And they होगा। received a more fresh anointing of the Holy Spirit। और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा का और ताजा अभिषेक भी पा लिया। This is a true thing that will happen, church। और- I want to talk to the church। I'm not talking to the people who just come for miracles। That's why I said first timers never don't come। और इसीलिए कहा कि जो पहली बार आते हैं उनको This is the church। ये है कलीसिया। Why? How do you know this is the church? It says the house of David। और देखिए क्यों? Oh, come on, somebody, now you got it। क्योंकि यहाँ पे लिखा है The दाऊद का- house of what? वो प्रभु से जुड़े हुए लोग हैं भाई। They have a relationship। उनका रिश्ता है प्रभु के साथ। Not the house, come on now, hello। चलिए। The house of David। दाऊद का घराना या What does घर। Jesus refer to? It says, son of David। और देखिए यीशु को संबोधित किया गया दाऊद का पुत्र कह के। Are you a son of the house of David? Are you a daughter of the house? That's the church, brother। क्या दाऊद That's the के घर के church। आप- Are you getting me right क्या now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Many people are, not on everyone। देखिए सभी के लिए नहीं। There is an outpouring on the world, and then there's an outpouring on the house of David। और देखिए दुनिया पर उंडेला जाना है, और फिर देखिए दाऊद के घराने पर भी अलग उंडेला जाना है। Come on, praise the Lord। Not everybody will pray। देखिए हर कोई प्रार्थना नहीं करते। The spirit of grace and supplication। अनुग्रह का और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। Now there are two। Can I go deeper like now? Is this blessing you? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रहा है? Yes। The church Ecclesia। should be a house। You know what? House of prayer। देखिए क्या प्रार्थना का घर। He says, my house, यीशु ने कहा मेरा घर, the house of David। दाऊद का घर, Come on, come on, come on। The house of David। दाऊद का घर। Look at somebody and say, you belong to the house of David। किसी को देख रहा है आप दाऊद के घर के सदस्य हैं। Yeah। You belong to the house of David। Your family is the house of David, brother। Hallelujah। आपका परिवार Yes। दाऊद के घर का सदस्य है। They will pray। वे प्रार्थना करेंगे। उनको बोलना नहीं चाहिए, अरे तुर्री नहीं बजना, ए प्रार्थना कर रहे, ए प्रार्थना कर रहे, ए प्रार्थना कर रहे। मम्मा कपिल शर्मा आता ही है। कपिल शर्मा जी भी आने वाले हैं। I met him once when I was flying to the US। पासवान जी He was, मुलाकात एक yeah। बार I told him, US जा रहे थे तभी। I said, sir, I don't see your programs, but much with my family, they laugh. And I look at you, say, thank you, thank you, thank you. And I saw that guy. Let it be now. Hello, are you listening? Yeah. So this speaks about the house of David, तो देखिए ये जो है दाऊद के घर के बारे में बताता है, not the world. दुनिया के बारे में नहीं। Now, if you are the house of David, और अगर आप दाऊद के घर के सदस्य, these things will happen. There are two
prophetic things over here. The first one is the church, and then the second is Israel. Okay, let me talk to you about the church now. यहाँ पर दिखाई जा रही है। देखिए पहला जो है वो कलीसिया, दूसरा जो है इजराइल। The third thing, and then they will look on me, और फिर आगे लिखा है कि तब वे मेरी ओर देखेंगे whom they pierced. जिसको उन्होंने भेदा। Come on now. And they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieves for him as one grieves for a firstborn. और आगे लिखा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते बेटे के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। Write it down, the third thing. Please write it down. So when the Holy Spirit comes upon you, when this grace comes upon you, when this spirit of prayer comes upon you, you will have a deeper revelation of Jesus. और देखिए जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, जब अनुग्रह आप पर आता है, जब ये प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा आप पर आता है, तो देखिए यीशु का आप गहरा प्रकाशन पाएंगे। How many feel listening right now? ये तो समझ रहे हैं। You see, today's world, they have a historical view of Jesus. और देखिए आज की दुनिया के पास जो है यीशु के विषय में ऐतिहासिक नजरिया है। ऐतिहासिक, हाँ एक यीशु था, इजराइल में था, बहुत अच्छा आदमी था, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, गाते हैं हम हालेलुया। It is a historical view of Jesus. They see the photographs. Ah, Jesus, you stay there where you are. I go where I want to go. और यीशु के बारे में वे ऐतिहासिक नजरिया रखे हुए अपने पास। बोले तू बैठो, यीशु इधर ही बैठ, मैं घूम के आता हूँ। हेलो 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 हेलो, तू इधर ही बैठ, मुझे करना है मैं करता हूँ, मुसीबत आ रही तो वापस आता हूँ तेरे पास, लेकिन तू जहां पर है तू वहीं पर रहे। Historical view of Jesus. और यीशु के बारे में ऐतिहासिक नजरिया। I will use you when I want to be, you want to use you. और मैं तब तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, आपका इस्तेमाल मुझे बच्चा चाहिए, यीशु। मुझे गाड़ी चाहिए, यीशु। अच्छा तुझे मैं नहीं चाहिए, नहीं तू उधर ही बैठ। कितना समझ में क्या कह रहा हूं? And there is a, they say God, फिर दूसरा परमेश्वर, I want you to be with me. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हों। I don't want a historical Jesus, I want a relevant Jesus. और मुझे ऐतिहासिक यीशु नहीं चाहिए, मुझे The one who talks to me, जो मुझसे बात कर सकता the है, one who walks with me, जो मेरे साथ चलता है, the one who leads me. जो मेरी अगुवाई करता है। I don't tell him what to do, he tells me what to do. मुझे उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ता क्या करना, यीशु, वो मुझे कहता वो है क्या मुझे करना। मिलनी चाहिए। अरे तेरी तो मिलनी चाहिए, तो मिलेगा क्या बाद में उसको? प्रभु, you know, some people are advisors to Jesus. प्रभु तू ऐसा कर, और बाद में प्रभु तू लेफ्ट में जा, उसको समझा। कुछ लोग Look at यीशु को भी somebody and सलाह say, देते हैं। you are an advisor to Jesus. किसी को देखकर कहें आप तुझे तो यीशु मंत्री को बनाना चाहिए हेवन में। सलाह देने वाले व्यक्ति हैं। Hello, are you listening, church? And then there is one person. और फिर दूसरा व्यक्ति, Say, God, वो कहता है परमेश्वर speak and it shall be done. तू बोल और हो Who जाए। are you? आप कौन हैं? Stop being an advisor to the Lord. प्रभु को सलाह देने वाला बनना बंद करें। If you can say, Lord, let your will be done in my life, then the Holy Spirit, you will have a deeper revelation. You see why they are mourning is because now they don't see him as a historical Jesus, they see him as Lord. और क्यों वो यहाँ पर विलाप बना रहे हैं? क्योंकि देखिए अब वे यीशु को ऐतिहासिक यीशु के रूप में नहीं दिख रहे, वे प्रभु को जीता जागता अपने सामने देख रहे हैं। Many people, when the Holy Spirit comes upon you, people, you start crying. Come on, hello. देखिए बहुत लोगों के साथ ऐसा, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो लोग जो है रोने लग जाते हैं। It's not a gift of tears. ये आंसुओं का कोई वरदान नामक चीज नहीं है। Show me, there's no scripture in the Bible which says gift of tears. सोचो ना, तुम्हारा पापा तुमको एक तोहफा लेके आता है, बोले पापा बेटा ये तू खोलेगा ना तो रोते रहेगा। There's no gift of tears. और ऐसे रोते रहने का, ये आंसुओं का कोई वरदान कोई नहीं गिफ्ट है क्या भाई साहब? नहीं, सोचिए ना, मम्मी तुम्हारे अच्छा गिफ्ट लेके आती है, चमकदार एकदम सुपर्ब, और बोले बेटा तुझ पे खोलेगा ना तो जिंदगी भर तू रोता रहेगा। बोले ये गिफ्ट ऑफ टीयर्स है बेटा, रोने का गिफ्ट है तेरा, जिंदगी भर तू रोती रहेगी। ऐसा गिफ्ट बोलेगा मम्मी तू ही रख। Look at somebody and say, I am sensible, I don't want such a gift. कहे मुझे समझ बुद्धि है, मुझे ऐसा Who wants a gift, man, like तोहफा that? नहीं चाहिए। Gift of tears. There's no gift like that. और इस तरह का कोई वरदान No, नहीं then है। what it is this. क्या है वो? ये It's a conviction. ये अंदर से कायल करना होता Come है। on, everyone say it's a conviction. Notice I didn't say condemnation, it's conviction. और देखिए गौर करें, ऐसा नहीं कहा कि आपके पर निंदा की जाती है, लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा कायल करता है। I'll explain. एक बेटा जो अपने माँ को एकदम बेकार ट्रीट करता है और एक दिन उसकी आंख खुल जाती है। ओके, सुन रहे हो ना? वो माँ बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसकी आंख खुल जाती है, अरे यार माँ ने मेरे लिए इतना किया, और रोने लगता है। Come on now.
उसका नजरिया जो है पूरा पूरा बदल जाता है, क्योंकि अभी वो माँ को एक नए नजरिए से देख रहा है. How many understand what I'm saying? यहाँ पर नजरिया बदल जाता है. Then they will look on me. तब वे मुझे देखेंगे. They will look on me. वे मुझे देखेंगे. The Holy Spirit will open your spiritual eyes पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा. to see Jesus as you have never seen him before. यीशु को उस तरह से देखने के लिए जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा. Some of you have know Jesus, see Jesus as your healer. प्रभु यहाँ पर हाथ लगा प्रभु, बाद में यहाँ पर हाथ लगाने के बाद यहाँ पर लगा प्रभु. प्रभु क्या थाई मसाज खोला है क्या भाई? प्रभु जब एक जगह पे हाथ लगाता ना पूरा चंगा होता आदमी. हालेलुया. ए Pastor, पासवान जी, put your hand over here. आपका हाथ One थोड़ा day यहाँ I was in a city. That lady was strong, brother. पासवान जी एक शहर में थे और She वहाँ got पर my वो- hand like that. She was an old उन्होंने sister. इनके हाथ एकदम कस के पकड़ लिए. Put your hand here. यहाँ पर अपना हाथ रखो. Now my hand was going like Tom and Jerry. Thak, 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 thak. उनके हाथ Thank टॉम एंड जेरी God के- one sister came. She was also like that, you know. परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बहन दौड़ती है वो भी एकदम Some हट्टी कट्टी sisters थी. are tough, brother. Hallelujah. She said, किधर करता है तू? काट तुझा हाथ. और वो कहने लगे, क्या कर रही हो तुम? अपने हाथ हटाओ. Hello, that was the end of that. I said, thank you, Jesus. उन्होंने कहा धन्यवाद यीशु. They don't understand. वो नहीं समझते. एक जगह हाथ रखा तो पूरा बॉडी चंगा होता है. Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु स्तुति इधर हो. इधर पास्टर का हाथ लगाना जरूरी नहीं है. क्या है? हंस रहे हो आप? अरे भाई होता है ऐसा. पास्टर थोड़ा सा इधर. पास्टर थोड़ा सा इधर. क्या है? You see church? अब देखते कलीसिया. They look on me. वे मेरी ओर देखेंगे. Their understanding will change. उनकी समझ जो है या नजरिया बदल जाएगा. And then they will say, God, we have hurt you. और फिर वे कहेंगे परमेश्वर हमने आपको ठेस पहुंचाया. See, such kind of mourning, everyone say mourning. और इस तरह का विलाप करना. Some Bible scholars say it Bible will be की कुछ accompanied by fasting. You see, church, आप देखिए this is spirit-led fasting. और ये आत्मा की अगुवाई से की जाने वाला Because the उपवास. word mourning, come on, everyone say mourning. क्योंकि शब्द विलाप जो है In the Bible, it was always accompanied with fasting. और क्योंकि हमेशा आप बाइबल में पाएंगे कि उपवास के साथ ये जुड़ता है. Come on, hallelujah. This is deep. ये गहराई का है. Is this good now, right ये now? अच्छा है. So when you're fasting, तो जब आप उपवास करते there should be a conviction. हैं तो उसमें कायल होना जरूरी है. No, don't fast because, no, I'm not saying this to kind of hurt you or something, please. Don't fast when you're frustrated because you could spoil your health. और देखिए जब आप हताश होते हैं ना तब आप उपवास मत करिए नहीं तो Because इससे the क्या devil आपकी तबीयत wants you बिगड़ to जाएगी. spoil your health. And when your health is spoiled, nobody will look after you. और जब आपकी तबीयत The बिगड़ Lord जाती है loves कोई you. आपको आपकी ओर देखेगा भी नहीं. प्रभु आपसे प्यार करता है. May the spirit of grace work up for you. और तो कि प्रभु के अनुग्रह का आत्मा आपके लिए काम Come on, hallelujah. Hallelujah. Fasting is not wrong, please. There are people over here who fast. And I'll tell you, the Lord loves them. और उपवास करने में कोई खराबी नहीं है. देखिए यहाँ पर लोग हैं जो उपवास करते हैं आपको बताते हैं कि But परमेश्वर here, से प्रेम करता है. when God's spirit comes on you, लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आता है, come on now. चलिए The spirit of grace comes on you. The spirit of prayer comes upon you. You start seeing Jesus differently, and with that, you will mourn for Jesus. You will say, God, I want you even more closer. अनुग्रह Hallelujah. का आत्मा आप पर आएगा और देखिए Come on, आप is this blessing you, उस sir? वक्त फिर यीशु के लिए शोक करेगा और कहेंगे कि प्रभु मैं आपको और गहराई से जानना चाहता हूँ. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. Hallelujah. Look at Moses. मूसा को देखें. Come on, hello. You see, this mourning is not to hurt. This mourning will bring a healing also. देखिए ये शोक करना ये विलाप करना जो है चोट या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लेकिन चंगाई भी लाती है. You see, there's a club in Mumbai now. Anybody knows about it? It's called now we had a laughing club. Now we have the crying club. और पहले देखिए Anybody knows? लाफिंग क्लब हुआ करता. अब Oh, you do. Praise God. I thought I'm the only one. There's a crying club. So I was like, what? एक रोने वाला क्लब भी है. तो पास बन क्या They pay money over there वहां पर वो पैसे अदा करते हैं and they go and cry. और जाकर रोते हैं. I said, just come to the studio. बस स्टूडियो में आ जाओ मुफ्त में. So there are people paying to laugh, paying to cry. And in our meetings, we do both. Come on now. और देखिए ऐसे लोग मिलेंगे जो जाते हैं Please हंसने tell के लिए them. पैसे अदा करते हैं और रोने के लिए भी पैसे अदा करते हैं. हमारे स्टूडियो में आज सब कुछ मुफ्त में हो जाएगा ऐसे दोनों. Yeah, रो लो भाई, जितना रोना है रो लो. And they said, here's the thing. अब सुनिए. So somebody asked them, why you want to make people cry? तो किसी ने पूछा क्यों आप लोगों को इतना रुलाना Saying, पसंद करते because crying brings healing. हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि रोना जो है चंगाई को लाती है. कोई लोग रोना नहीं तो भी रोते हैं. Isn't children, इसने मेरे को मारा. No, not that kind of crying. इस तरह का रोना नहीं. This is a spirit crying. लेकिन ये आत्मा की
It brings healing to your soul. और देखिए ये आपके प्राण में चंगाई लाता है। Somebody say praise the Lord. I said praise the Lord. Now there is a prophetic. Write the fourth point, right? चलिए चौथा मुद्दा यहाँ पे देखिए And भविष्यवाणी we're है। going to pray now. We're going to pray, okay? I'll just keep it simple. Is this good? The fourth one, the prophetic fulfillment. और देखिए भविष्यवक्ताई Now परिपूर्णता। let's look this in the context of Israel. चलिए इसे हम इजराइल के संदर्भ में देखते हैं। The rapture has taken place. और देखिए रैप्चर हो चुका है। Pastor, what am I doing here? यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? Relax. आराम से। Relax. Now some people are scared, Pastor, what are you और saying? कुछ लोग घबरा गए। I already saw YouTube videos which saying, be careful, September में सब गुल होने वाले हैं. Tell your neighbor, relax. Relax. It could happen tonight. Oh no! Yeah, why September? Tell your neighbor, get ready for tonight. तो प्लीज सुनिए, कोई भी अगर आपसे कहे प्रभु ने मुझे बताया रैप्चर सितंबर 24th 25th को होने वाला है, कितने लोगों ने वीडियो देखा? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, ठीक से कीजिए। कितने लोग डरे हुए हैं अभी? बताएंगे थोड़ी नहीं, ये प्रॉफिट ने बोला, वो प्रॉफिट ने बोला। सर सुनिए, इस वक्त सितंबर 24th को होगा। पास्टर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता 24th को होगा, मुझे तो प्रभु कहता है कभी भी हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है। बाजू वाले को बोलो रेडी हो जाओ। Why September 24th? Lord, do it tonight. तो सितंबर 24 तारीख प्रभु A आज ही करा। believer is always ready with a lamp and the oil. और एक विश्वासी जो है हमेशा उस दिए को और तेल लेकर तैयार रहता है। Hallelujah. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। No matter what you're going through, sir, no matter what you're going through, please be spiritually ready. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि जनाब आप किस Anyway, दौर में let से me जा not रहे हैं, मेहरबानी speak करके आत्मिक तौर पर हमेशा तैयार So रहें। this verse is written in what historical context I will tell you now. और देखिए ये वचन जो है Please listen carefully. ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा कभी गया वो कभी बताएंगे। सुनिए इस वक्त मुझे बोलने दीजिए आज। कभी कभी ना शैतान इतना दबा देता ना आदमी को, उतना प्रॉब्लम से दब जाता ना, तो बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। और वो अपनी तेल को संभालता नहीं, अपनी लैंप को नहीं संभालता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे विश्वासी लोग रह जाएंगे फिर। सो आई डोंट वांट योर ब्लड ऑन माय हैंड्स। आपका खून अपने हाथों में नहीं चाहते? कम ऑन नाउ, चलिए कैन आई टेल यू समथिंग? क्या आपसे कह सकते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस देखिए यीशु के समय काल में देयर वर सम पीपल स्टिल नॉट हील्ड। ऐसे भी कुछ लोग How do you जिनको know that? चंगाई नहीं मिल सकी थी। नहीं सच में ये लगा हाँ वो एग्जैक्टली पास्टर, यू आर राइट। आई विल प्रूव इट टू यू। आपको साबित करके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस, यीशु के समय काल में, नो इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस, यीशु के समय काल में भी जीसस गॉड हिमसेल्फ, और यीशु परमेश्वर खुद, कम ऑन नाउ, हेलो, स्टिल द पीपल वर नॉट, ऑल ऑफ देम वर नॉट हील्ड। सबके सभी को चंगाई नहीं मिली थी। हाउ डू यू नो दैट? कैसे आप जानते हैं? रीड योर बाइबल, एक्ट्स चैप्टर 3। बाइबल पढ़िएगा, प्रेरितों द का लेम मैन आउटसाइड द टेंपल, ही वाज स्टिल देयर। और देखिए अरे उल्लंघना जीसस व्यक्ति, एंटर्ड द टेंपल सो मेनी टाइम्स। और यीशु उस मंदिर में कई बार गए थे। कम ऑन नाउ, हालेलुया। वो बच्चा भिखारी होगा तभी, कम ऑन नाउ। और उसने यीशु मसीह को कितनी बार जाते हुए देखा रहेगा। ऐसे कितने लोग थे? क्यों पता है? क्योंकि अगर सब यीशु हील करता तो फिर पीटर जॉन के पास क्या रहता फिर? There is a come on, hey, go man, go. There, hello, are you understanding me what I'm आपको saying? समझ में आ रहा जो कहा जा कोई रहा कोई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो ABCD पढ़ के आते हैं कहाँ से? You see, church, there is a timing, there is a purpose for everything. Anyway, let me not go there. So now the rapture has taken place. देखिए अब यहाँ पर जो रैप्चर जो है उठा लिया जाना हो And चुका है, now Israel is just there. और इज़राइल बस बसा हुआ है। After the rapture, God will not deal with the world, He will deal with Israel. और देखिए रैप्चर के बाद परमेश्वर दुनिया से निपटेगा नहीं, The इज़राइल से focus निपटेगा। of God will change from the Gentile nations to the Lord, to the Israel. Yes. और देखिए परमेश्वर का नजरिया अन्य Come on, जातीय is anybody राष्ट्रों में से जो understanding? इज़राइल की ओर मुड़ जाएगा। When Jesus came, the focus was on Israel. और देखिए जब यीशु मसीह आए थे तब पूरा ध्यान जो है इज़राइल पर था। Come on, hello, are you listening right now? Somebody called him and says, the Greeks called him. He said, no. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, जब तक मैं मरा हूं नहीं, तब तक ये चीज बाहर नहीं फैलेगा. Hello, are you listening, church? Anyway, let me not go there. And then Jesus dies. फिर यीशु मरते He's हैं, resurrected. फिर से पुनरुत्थित And the होते हैं। gospel goes to all. It goes to Kurla, goes to India. Come on, hello, are you listening right now? समाचार कुरला, भारत देश, People सब get जगह saved, people पहुंच get touched and blessed and everything else. Now, rapture take place. Pow! और रैप्चर हो जाता है Suddenly, अचानक। everybody's gone. हर कोई चले गए Look होते at somebody and say, see you in the rapture. Hello.
बोलना 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 बोलना. Yes. Everybody's gone. सब लोग चले गए हैं, Everybody's gone. हर कोई चला गया. So if you want the drums, you can have it after the rapture. तो अगर आपको ड्रम चाहिए तो आप रैप्चर के बाद ले सकते हैं. Okay? You can have the studio also after the rapture. स्टूडियो भी ले सकते हैं. Outside, Antichrist will waiting for you. Okay? और मसीह विरोधी आपका इंतजार में रुका रहेगा. Public से हाँ मिलेगा तो अच्छा है ना. Listen. सुनिए. कोई लोग समझे ही नहीं. जाने दो भाई. आपके लिए चाय आ रही है. अदरक मार के ना सर पर. Listen. So now the rapture is taking place. Now, रैप्चर हो चुका है that time, और उस समय God will start dealing with Israel. परमेश्वर इजराइल से निपटने लगेगा. Now watch this, watch गौर this, करें. watch this, watch this. गौर करें. At that time, उस वक्त hello, सुनिए, the nations will come against Israel. कई राष्ट्र जो इजराइल के खिलाफ में आएंगे. Write it down, write it down, write it लिख down. लीजिए, लिख लीजिए. China will come against Israel. चीन आएगा इजराइल के खिलाफ में. Pastor, will India come? पासवान जी, क्या भारत देश भी जाएगा? I don't know. नहीं पता. I didn't say anything. Russia will come against Israel. रूस भी इजराइल के खिलाफ में आएगा. The Islamic nations will come against Israel. इस्लामिक राष्ट्र जो इजराइल के खिलाफ में आएंगे. How do you know that? कैसे पता? Can I tell you? क्या आपको बता सकते हैं? Can I tell you? $1 million question. Write it down. लिख लीजिए. You see, every Arab nation, most of the Arab nations, देखिए, ज्यादातर जो अरब देश हैं, they have their flag red, green, white, and black. And that are the 4 horses. और ये देखिए 4 घोड़े के बारे में है. Oh, that's, you didn't miss that. You missed that, right? अभी public बोल रही क्या बोल रहे हैं आज ये? I told you बताया आपको. this is not for the baby class. So, Sudan. Anyway. कहीं Tomorrow भी morning devotion I will tell you that. Tomorrow morning devotion I will deal with this. So all these nations. और ये सारे You see, राष्ट्र, God is prophetic. God is the prophet. Hallelujah. परमेश्वर की भविष्यता तो वही तो भविष्यवक्ता है. एक कलर में सब कुछ बता रहा हो. Which nations will come? All राष्ट्र? these nations will come ये against सारे राष्ट्र आएंगे इजराइल के खिलाफ में. and they will stand. At that time, उस समय पर God will say, wait a minute. परमेश्वर कहे रुको जरा. Look at someone and say, wait a minute. ईश्वर कहेगा रुको जरा. At that time, उस समय this verse will take place. ये वचन पूरा होगा. Somebody say, I received this word. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ. Now Israel's, अरे sir, you see the war with Iran. आप देखते हैं ईरान के साथ वो युद्ध. Do you know it cost Israel so much of millions of dollars? आपको पता है कई Hello. इजराइल ने तो खर्च कर सोचो ना सर, एक कंट्री को दबाने के लिए इजराइल छोटा है. इजराइल के पास तेल वेल नहीं है सर. Iran has reserves of oil. Huh? You don't know, sir. I'm telling you. At that time, the nations will come. Missiles will fly from here, from there, from here and there. And how much can you do? और कितना आप कर सकते हैं? It's a small nation. एक छोटा सा राष्ट्र है. At that time, उस समय that time, things will not be good in Israel. और उस समय इजराइल में हालात सही नहीं होंगे. And that time, और उस वक्त they will cry out to God. वे परमेश्वर को पुकारेंगे. They'd say, Yahweh, save us. और वे कहेंगे याहवे हमें बचा. They know, everywhere they'll be surrounded. और वे जानते हैं, उन्हें पता होगा कि हर ओर से वे घेर लिए गए. And then, listen, hello. सुनिए. How do you know? कैसे पता? First Chronicles 20:20. पहला इतिहास 20वां अध्याय 20वां वचन. Same thing which happened with Jehoshaphat वही चीज जो यहोशापात के साथ हुआ is था, going to happen with Israel. इजराइल के साथ भी वही होने जा रहा है. The multitude as the sand on the shore will come against Israel. And I can tell you the nations, Sudan, come on, all the African Muslim nations, they will come against Israel. Egypt will come against Israel. मिस्र जो इजराइल, Jordan will come against Israel. जॉर्डन भी Who is इजराइल a के खिलाफ- friend of Israel. Treaty, they will break that treaty. वे उस संधि को तोड़ेंगे और उसके खिलाफ में आएंगे. Come on. Yes. There'll be one nation missing. I'll tell you tomorrow. And that time the Jews will cry out. और उस वक्त यहूदी लोग पुकारेंगे And then God will do something. और फिर परमेश्वर कुछ खास At करेगा. that time he says, I will pour on the house of David and the inhabitants of Jerusalem. Everyone say inhabitants of Jerusalem. फिर वो कहता है कि मैं दाऊद के घर और यरूशलेम के निवासियों पर. This is the priestly people. और ये याजकीय लोग हैं. Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया. You see, the house of David was a larger church. The inhabitants of Jerusalem, book of Nehemiah, these were special selected people who have to stay in the city of Jerusalem. Can I go deeper right क्या now? गहराई में जा सकते हैं इस समय? This is the leadership of Israel. और ये इजराइल का देखिए अगुवापन है.
inhabited the spirit of grace and supplication. Today, there is a different spirit that is ruling the people. और आज देखिए एक अलग ही आत्मा जो लोगों पर शासन कर रही If है। you go in Israel, अगर आप इस्राएल में you would जाएंगे expect everyone to say, let me not use that word, okay? I was trying to speak Hebrew, but it's okay, no problem. If you not understand that. So I don't want to show off. Listen to this. सुनिए से You see everybody, you thinking like everybody's taking the name of God and all that in Israel. No, sir. It's all sleaze and all that nonsense everywhere. I'm saying, what is this? और आप पाएंगे कि वहां पर You expect them to fear God? आप अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर का भय मानेंगे, Not at all. बिल्कुल भी नहीं। All dirty things are happening. सब गंदी चीजें हो रही हैं। Then when this anointing comes. तो जब ये अभिषेक आएगा, Hello. सुनिए, सर आप इजराइल गए नहीं? सर मैं 14 बार गया इजराइल। बता दो, ये पैंडेमिक वॉर इसीलिए 14 times. 14 बार। And I don't go as a tourist, I go as a pilgrim. और देखिए पर्यटक के रूप में वहां पर नहीं जाते हैं, लेकिन I'll श्रद्धालु के sit रूप में over जाते हैं। there, I'll study over there, I'll meet people over there. और जाकर वहां पर I पढ़ते wish हैं, you were ध्यान there. करते हैं, लोगों से मिलते हैं। And then they will look on me. At that time, their spiritual eyes will open और तब वे मेरी ओर देखेंगे और उस वक्त उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। and say, what? क्या? Our Messiah came to us हमारा मसीह हमारे पास आया and we did not know him और हमने उसे नहीं जाना and we crucified him on the cross. और हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। That time there will be a national mourning. और उस वक्त राष्ट्रीय तौर पे वे विलाप Do करेंगे। you know when this will happen? आप जानते कब ये होगा? On the day of atonement. अटोनमेंट के दिन, पाप On क्षमा the के दिन, day of Yom Kippur. योम किपुर के दिन। Hello. The day of Yom Kippur. The people will start mourning. That's why I said there will be national day of fasting in Israel. और इसीलिए कहा कि राष्ट्रीय तौर पे इस्राएल में लोग शोक और विलाप People करेंगे। will start fasting and praying. लोग उपवास और प्रार्थना में लगेंगे And that time, और उस समय the Lord will show up. प्रभु खुद प्रकट होगा। Come on, that is the second coming of Christ. और ये मसीह का दूसरा Come आगमन on, रहेगा। hallelujah. चले गए। Where the cameras will see him coming on the horse. और जहां पर कैमरा पे देखेंगे कि And वो you घोड़े पर know सवार होके आ what रहा है। these idiots will say on अब जानते the. हैं वो बेवकूफ लोग क्या कहेंगे? Come on, hello. They will say, alien aa raha hai. और वो कहेंगे एलियन आ रहा है। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे हैं If you are listening to this video, I don't know if YouTube will be there, definitely. If you're listening to this video, I'm telling you, this is what they will say. There's an alien coming from this realm. Because, hello. It's not like, it's a telescopes, Halley's telescope, whatever, Webb Space Telescope. Christ will just appear. Poof, it will just appear from the spirit realm. और मसीह जो है सीधे आत्मिक आयाम से सीधा प्रकट हो जाएगा। Come on, help me somebody. चलिए। They will call God an alien. Mark my और words. देख लेना वे परमेश्वर को एलियन नाम से बोलेंगे। And the armies of बड़ी the फौज। nations will go against him. और पूरी राष्ट्र की फौज जो है उसके खिलाफ में जाएगी। Come on, hello, are you there right now? And God will defeat them just like that. और परमेश्वर यूं ही उन्हें हरा देगा। Come on, hallelujah. चलिए। This is what it is. और यही है। It will happen in response to the anointing, the pouring of the Holy Spirit. और ये सब कुछ होगा देखिए पवित्र आत्मा उंडेले जाने के प्रत्युत्तर के रूप में। Hello, are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं? So there is a spiritual fulfillment and there is a prophetic fulfillment. तो आप यहाँ देखते हैं आत्मिक तौर पे परिपूर्णता दिख रही है और भविष्यवक्ता तौर पे परिपूर्णता भी आ रही है। Is anybody listening over here? ये सुन रहे हैं I hope you are getting my point right और now. आशा करते हैं कि आप इनके मुद्दे को समझ पा रहे हैं। Hello, are you listening? आप So सुन- this is how this verse is. तो ऐसे ही ये वचन है। So pastor, तो पासवान जी what should I do? मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Don't get distracted. I just keep sometimes making my hands like this. So don't look there. Look at me now. कभी कोई मूड आता है जैसे करता हूँ मैं ना, तो उधर मत देखो, इनको नहीं देखने का, इधर देखो. So what should I do now? तो आपको अब मुझे क्या करने की Here's जरूरत the है? first one. पहला है Today, आज you got to start pouring. You're praying for the outpouring. देखिए आपको उंडेले पवित्र आत्मा उंडेले जाने के लिए प्रार्थना करना है। Karuna Sadan as a church, what we should do? और कलीसिया एक करुणा सदन कलीसिया के रूप में क्या करना है हमें? Pray for the outpouring of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना You करें। should cry out and say, Father, आपको पुकारते हुए कहना pour पिता, out your spirit of grace and supplication तेरे अनुग्रह और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेल दे upon me, मुझ पर, upon my family, मेरे परिवार पर, upon the Karuna Sadan church. करुणा सदन कलीसिया पर। Oh, come on, somebody. चलिए कोई तो कहें That's what we should pray. और यही तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए And we are going to pray right now. और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Is anybody listening over तो here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? The second thing you must do, दूसरी चीज जो आपको you करनी है, must lengthen your prayer time. आपको अपना प्रार्थना समय जो Is है anybody understanding what I'm saying? When you do that, जब आप ये करते you हैं move from information to adoration. तो देखिए आप जानकारी से जो है उसकी प्रशंसा के स्तर में जाते हैं। कोई लोग है ना, hello,
कोई लोग चर्च में कैसे आता है मालूम है? चल रही, अच्छा ठीक है, बैठे रहता है, हाँ ये अच्छा स्टोरी सुना रहा है, अच्छा मजा है, अच्छा मजा है, कसं वाटलं, बरं वाटलं मला, अच्छा. Now that is you are in the information और stage. ये देखिए आप जानकारी के स्तर में हैं And now you move from there. और फिर आप वहां से आगे You जाते हैं, become a worshipper. आप आराधक बनते हैं. Somebody say praise the Lord. चलिए कोई तो कहे, So you move from information to adoration. जानकारी से आगे बढ़कर आप Many people आराधना- they tell me, प्रशंसा के pastor स्तर में बहुत जाते अच्छा लगता है, मजा येतो चर्च मध्ये. अच्छा तू मजेसाठी येतोस रे की आराधनेसाठी येतोस? How many understand what I'm saying? हैं. कि जो समझ है जो कह रहे हैं अभी. I'm telling you, there are many Very people. They love it. देखिए, They बहुत love the लोग music. Some people they love the music. कुछ They love लोग the music because they संगीत cannot बहुत afford पसंद maybe a show with the lights and all. So they come to church. बोले धुआं आता है, लाइट आता है, क्या मजा आता है, क्या बीट बजता है. अच्छा तू बीट के लिए आता है? हाँ थोड़ा नाचने भी मिलता है. No, really, today, hello, can I tell you? क्या आपसे कह सकते हैं? So don't think that all people come for the love of the Lord. ऐसा मत सोचिए कि हर कोई जो है प्रभु के प्रेम की वजह से ही आते हैं. शीला भी आती है वहां पर. अच्छा, ओ शीला आती है तो मैं आ रहा हूं. Some people come for the girls, some people come for the boys. कुछ लोग लड़कियों के लिए आते हैं, कुछ लोग लड़कों के लिए आते हैं. वो आ रही तू चल, तू भी चल. I'm telling you, this is hello, Pastor. How do you know it? आज मुझे आपको कैसे पता? Because I used to do it once upon a time. That's why I went to church. I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे हैं. Till I met Jesus. जब तक यीशु से इनकी मुलाकात नहीं हो गई. Look at somebody and say, you need to move from information to adoration. देखिए आपको जो है जानकारी के स्तर से आराधना के स्तर में आना है. And how that is going to happen? कैसे ये होगा फिर? When you look beyond the men. जब आप इंसान के परे देखेंगे. Two things, church. दो चीजें कली. Pastor, I heard this message आज मैं इस संदेश को मैंने सुना and I like this message. और मुझे पसंद भी आया. Now what do I do? अब मुझे क्या करना है? Pray for the outpouring. पवित्र आत्मा उंडेले जाने के लिए प्रार्थना करें. कितने लोग सुन रहे हैं? Pray, Lord, pour out your spirit of grace and supplication upon me, upon my family, upon the church, upon everyone who's connected. और कहना है कि प्रभु तेरे अनुग्रह और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को जो है मुझ पर, कलीसिया पर, हर कोई जो मुझसे जुड़ा हुआ है उन पर उंडेल दे. And then you move from information to adoration. फिर उसके बाद आप जानकारी के स्तर से आराधना के स्तर में आए. Is this blessing you, क्या sir? आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? Amen.